जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 562nd एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस, जहां पे हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, क्रिप्टोज, कमोडिटीज, फॉरेक्स, एंड इन द एंड ऑफ द सेशन वी टेक योर स्टॉक क्वेरीज. So today is Tuesday, 3rd of March 2022. Today is a very auspicious day. Akshay Tritiya, sabhi ko ढेरों शुभकामनाएं. Okay, so we are in this interesting week of the US Fed meeting, which is running today and tomorrow. So, why it is very crucial? Because the US Fed is most likely almost 100% on its way to tighten the rates. So this is a consensus that has been built and that is widely believed right now कि यूएस फेड जो है ये रेट हाइक साइकिल को फॉलो करेंगे, एंड इट इज ऑलमोस्ट वेरी मच प्राइस्ड इनटू द मार्केट्स, एंड दैट इज द रीजन why these markets, especially the US market, the Nasdaq, Dow Jones, and the S&P 500, they have dropped going into this event. Now, if you remember, we had very clearly mentioned that the S&P 500, the perfect short trade that was almost here at 46.40, and since then our first target was 43.20, which got done here, and thereafter again the sell off started and we have made a new bottom. So basically US market ने अपने मार्च लोज को जो है ब्रेक किया है, इंट्राडे बेसिस पे जो है इसने कल ब्रेक किया है, and since then we have staged a very nice comeback. Now ideally speaking it's a very nice buy setup, but right now I think market जब तक कल के इवेंट को क्रॉस नहीं करता, these setups they are vulnerable and they can fail. So obviously कल जो है एक डी डे है, कल जो है एक फाइनल वर्डिक्ट आएगा, and that will set the course for these markets for the coming weeks and coming months. Now what I feel going into the event, what I feel going into the event is that definitely US Fed जो है ये अपने रेट्स को जो है टाइट करेंगे, एंड हॉकिश कमेंट्री तो होगी ही. इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज डेटाज दे आर नॉट गुड. यूएस डॉलर भी काफ़ी ऊपर है. You all have seen the rally, the unstoppable rally in the US dollar. So definitely it is not going to be easy to manage everything, क्योंकि स्टॉक मार्केट को भी मैनेज करना है, मैक्रोस को मैनेज करना है, रेट साइकिल को मैनेज करना है, परसेप्शन को मैनेज करना है. सो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी सो इजी फॉर द यूएस फेड, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें इस समय जो है एक तकलीफ का सामना करना पड़ेगा. सो दे विल हैव टू डेफिनेटली टेक अ सीरियस स्टांस, एंड if they again they don't take a serious stance, then there will be a bigger problem in the future. So for the short time these markets are oversold. Probably just to lift up the market they may raise rates, but they may give a dovish commentary, but I think more or less these markets are destined to go much lower. So the US market, this was the first decline, then the counterback rally, and I think what we have started is some sort of a third leg on the lower side towards 3700, which is the opening price of say 2021. Now we are completing the first leg of this third leg drop. So I think more or less we have done this. कल के दिन मुझे लग रहा है कि ये अराउंड 40 to 50 वगैरह जाके जो है ये और गिरेगा एक बार. आई थिंक it will just flush through the 4000 psychological number over here, and I think that will create a bottom. That's a very nice potential bottom, and I think more or less if 4000 को एक बार flush through करके ये for the time being S&P 500 जो है यहाँ पे मुझे बॉटम होता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 3950 से लेके 4000 के बीच में, and then it might stage a very nice comeback and it might shoot all the way till 4450. तो जो S&P 500 ट्रेड कर सकते हैं, जो फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये. ओके, इफ यू कैन मैनेज देन यू कैन टेक suitable trades. Okay, now
the data that has come from the US in terms of the performance, जैसे कि 2022 में S&P 500 is down by 14%, Nasdaq जो है it's down by 22%, and Dow Jones is again down by 14-15%. So ये जो stats जो हमें देखने को मिल रहे हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं कि उसके comparison में people are comparing Nifty, which is down by just say -3%, right? And then people have built a consensus that there is a LIC IPO, so Indian markets को कुछ नहीं होगा and all those shit, right? तो एक चीज जो है हमेशा ध्यान दीजिए कि मार्केट में जब कोई कंसेंसस बिल्ड हो जाता है, जब कोई कंसेंसस बिल्ड हो जाता है, मार्केट उस कंसेंसस का वेट करता है, एंड इट विल नेवर फॉलो दैट कंसेंसस, इट विल ऑलमोस्ट डू अ वेरी एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट कंसेंसस. तो यहाँ पे जो LIC का जो फंडा है एंड द रिलेटिव strength that you are witnessing in Nifty vis-a-vis the US market, I think this is all eyewash, and I think tides will change soon. इसके बारे में हमने पहले भी देखा है कि लास्ट टाइम जो यूएस मार्केट का ये जो ड्रॉप था, इफ यू सी, यूएस मार्केट मेड द bottom first, and at that time Nifty was trading at a higher level, and when US market made a bottom, that was the time when Nifty started to correct. यहाँ भी वही चीज है, यूएस मार्केट हैज मेड अ न्यू बॉटम, अ न्यू लो ओवर हियर, and Nifty is hovering somewhere at a higher level. So when US market starts to bounce, the Nifty can react on the lower side. So it can be a lag effect. These things do happen, but इसको एक relative strength के तौर पे मुझे नहीं लगता कि इस समय लेना चाहिए, ठीक है? And especially when there is a very large IPO scheduled to come in the market. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगेन ये रिटेल ट्रेडर को एक टाइप का जो है, यू कैन से, एक टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है, एंड आई थिंक दे आर इन फॉर अ शॉक. नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. एक बार हम बाकी जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं. And today we will take lot of stock queries, so you can keep your stock queries ready. Now if I look at the Nasdaq, अगर हम Nasdaq का चार्ट देखेंगे तो Nasdaq में बहुत ज़बरदस्त जो है सेल ऑफ हुई है, and all the major IT companies, their stocks, they have been sold off. But I think Nasdaq इस समय जो है more or less I think it is sitting at it is approaching a very crucial support area, which is of say 12,500 and 12,000 level. And I think Nasdaq जो है more or less, मुझे लगता है कि कल अगर कोई एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ तो Nasdaq को जो है वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा. अगर बाकी हम इंडाइसेस की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग स्लाइटली इन ग्रीन, and if we talk about the ACWI, that is also trading in green. So some sort of bounce has come after yesterday's correction, yesterday's sell off, and I think ये जो है एक short covering है before the Fed policy. Okay, now let us have a look at the US dollar. US dollar जो है it is still almost in that top region, and it is just consolidating, and I think all the currencies, they will not give any true movement before the US Fed policy is released. So I think it is futile to watch these currencies and make any conclusion, क्योंकि कल जब यूएस फेड की पॉलिसी क्या आती है उसके हिसाब से ही करेंसीज होंगी. वैसे यूएस डॉलर अगर हम एक लॉन्ग टर्म के चार्ट पे देखें तो फॉर द टाइम बीइंग इट हैज़ कम एट अ मैसिव रेजिस्टेंस. अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो since last two times it has reacted from this zone, so we are still there. The only difference is that the last two times we never closed above this level, even on this candle during the month. This is a monthly chart, so during the month it popped up, but it closed below. This time we have managed to break this resistance on a closing basis on the monthly chart, so that suggests that yes, definitely this time there is a greater strength as compared to the previous two times, and possibly it can stage some further rally. But on a daily chart, it's very overbought, and it's very rare to see the US dollar moving single handedly on the upside or on the downside without any pullback. So it is okay to conceive that after the Fed policy, yes, it is consolidating right now, so obviously it will pop up first, even if it has to drop. So there will be some up move first to take out all these stop losses, and then there should be a drop. So US dollar एक
definitely a credible resistance zone pe hai. And I think after moving little higher, it should stabilize, it should start to do some correction. And the euro and the British pound, they are also not doing much, even they are sitting around USD JPY वो भी 130 के लेवल पे है, तो कुछ खास करेंसीज में अभी नहीं होगा, इवन नेक्स्ट 24 घंटे में भी कुछ खास नहीं होगा, इट विल बी जस्ट अ रेंज बाउंड मार्केट। एंड कल शाम के बाद यानी कल रात को जो फेड पॉलिसी की न्यूज़ आएगी उसके बाद ही डिसाइसिव मूव होगा। Now let's talk about the Indian currencies। तो जो NSE फॉरेक्स फ्यूचर्स पे जो करेंसीज ट्रेड हो रही हैं, मैंने संडे को जो भी लेवल्स आपको बताए हैं, आई थिंक ऑल दोज लेवल्स आर परफेक्ट, और हम उसी व्यू और उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है चलेंगे। कमोडिटीज़ की बात करते हैं। कमोडिटीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करते हैं, बिकॉज वंस अगेन इट हैज़ हिट अ न्यू हाई, एंड दैट इज़ लिटिल सरप्राइजिंग, नॉट मच बट लिटिल सरप्राइजिंग। इसमें कल दोस्तों हम शॉर्ट करके जाने वाले थे, 575 के लेवल पे हमने शॉर्ट किया था, बट बिफोर क्लोजिंग वी एग्जिटेड द ट्रेड। वाई? बिकॉज दिस लुक्ड लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ नॉट अ बुल फ्लैग आई वुड से, बट यस टेक्सचर था इसका थोड़ा सा बुल फ्लैग ब्रेकआउट टाइप का, एंड इट वाज क्लोजिंग एट अ डेज हाई। नाउ ऑलवेज रिमेंबर in commodities, because there is a large good possibility of a big gap up and a gap down. If you are a shorter and prices are closing at a higher level, then you always run a risk of getting bear trap। इसीलिए हमने जो है इसको कल कट कर दिया, इवन कट करने के पहले भी शायद 2-3 रुपए का प्रॉफिट था। एंड टुडे लुक वेयर नेचुरल गैस इज 40 पॉइंट्स हायर देन दैट लेवल। सो अगर हमने इसे कैरी किया होता तो 40 पॉइंट का जो नुकसान होता। सो learn the basics of technical analysis, learn the basics of this game। and नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है ये इस वीकेंड में है, May 7th and 8th, एंड टुडे इज द लास्ट डे, इट्स ऑलमोस्ट डन। इफ एनी ऑफ यू विश टू जॉइन इन द लास्ट मोमेंट, यू हैव टाइम टिल टुनाइट। इसके बाद कल से कोई भी फ्रेश एंट्रीज हम इसमें नहीं लेंगे, देयर विल बी नो अनाउंसमेंट, नथिंग। सो नेचुरल गैस, आई थिंक आई विल वेट फॉर टुमारोज सेशन। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस थोड़ा सा, अगर मुझे 635 या 630 के लेवल पे यहाँ मुझे मिले, and if there on a lower time frame chart, if I start to see some sort of weakness coming in, then definitely मैं इसे यहाँ पे ही मैं short करना पसंद करूँगा। Okay, until then I think there is no trade from my side on natural gas, so I watch out for 635। I think that is going to be a potent resistance over here। I think it is not going to be easy for natural gas to cross, to break through that level, and there is a 80% chance that it should take resistance at 635 and start a correction again back to that 575 level। ठीक है, तो एक ट्रेड सेटअप यहाँ पे पॉसिबल है। जिनको टेक्निकल्स आता है, आप थोड़ा जो है कल प्राइस एक्शन को देखना, अगर कमजोरी दिखी प्राइसेस में तो डेफिनेटली शॉर्ट आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस के तौर पे आप 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, now let's talk about crude oil। So crude oil has been dodging every now and then since a few days, but it's okay। I'm purposely taking or giving the trades at a very extreme level। Okay, so when you don't wish to take much chance, you will always have this risk of not getting into the trade। यानी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि इसको हम 2-3 टाइम से जो है ना, इसे हम बाय करना चाहते हैं, बट ये हमारे लेवल पे आता नहीं है, एंड इट शूट्स अप बिग 5 to 700 पॉइंट्स, एंड अगेन वी लुक टू शॉर्ट, बट इट डजंट कम एट आवर लेवल एंड इट ड्रॉप्स बाय 5 to 600 पॉइंट्स। तो ये जो है आई थिंक 2 या 3 बार ऐसे हो चुका है। तो हमारा एंटिसिपेशन करेक्ट होता है, बट ट्रेड हमें मिल नहीं पाता है। नाउ ट्रेड क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू pick the longs, pick the shorts almost at the best possible price। And because we are sitting ahead of the US Fed policy due to the some sort of random price movement, ये चीजें होती हैं। So it's not a big deal। In fact the choice is yours। There is always a trade off। अगर आप बेहतरीन लेवल का वेट करोगे तो ये रिस्क हमेशा रहेगा ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो फिर आप कहीं भी शॉर्ट कर सकते हो, कहीं भी लॉन्ग कर सकते हो, राइट। सो आई हैव चोजन द अदर वन। नाउ अगर क्रूड ऑयल की हम बात करें तो अगेन जैसा मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, इट इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड डे बाय डे, द रेंज आर गेटिंग नैरो, and we are almost approaching that make or break sort of a situation। So this is a larger triangle in the crude oil that is unfolding, and अभी कुछ नहीं हम कह सकते कि
ये अपसाइड जाएगा ये डाउन साइड जाएगा, ओके, वेदर दिस वाज द टॉप, दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज द सेकंड एंड द थर्ड हैज टू कम, ये कहना मैं समझता हूँ इट इज टू अर्ली एंड यू शुड नॉट टेक अ साइड राइट नाउ, बिकॉज क्रूड खुद अभी कोई साइड नहीं ले रहा है। तो इस चीज को हम डील कैसे कर सकते हैं, जैसा मैंने परसों रात को बताया था कि अगर ये हमें नीचे के स्तर पे मिले अराउंड 7600 तो बहुत ही बेहतरीन लेवल होगा यहाँ पे बाय करने का। 76 पे मिला, 75 एंड 76 के बीच में, तो इट्स अ डेफिनेटली बाय विद अ स्टॉप लॉस बिलो 7400, और टारगेट इसका बहुत बड़ा होगा दोस्तों, टारगेट कम से कम 9000, द लेवल ऑफ 9000 विल बी द टारगेट। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ ट्रिपल टॉप। तो ये जो 8200 का जो लेवल है ये ट्रिपल टॉप बन चुका है, ठीक है। सो देयर इज अ वेरी ऑब्वियस रेजिस्टेंस वी आर लुकिंग एट। कोई भी चीज जब बहुत ऑब्वियस हो जाता है ना, मार्केट गोज एंड ब्रेक दैट लेवल। अगर आप टॉप को देखोगे तो 8200 एक ऑब्वियस ट्रिपल टॉप है, बट इफ यू कंपेयर ऑन द लोअर साइड देयर इज नो ऑब्वियस लेवल, देयर आर डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे अलग लेवल था, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, और यहाँ भी अलग हो सकता है। सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑन द लोअर साइड, बट देयर इज अ वेरी वेरी सेम लेवल्स ऑन द हायर साइड। सो दिस कॉमन सेंस टेल्स मी कि क्रूड जो है ऊपर ब्रेकआउट करेगा। ओके, नाउ ट्रेड यही होगा, 76 75 की रेंज में बाय करेंगे, 74 के नीचे का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट होगा 8200 एंड देन 9000, एंड ऑल दोज लेवल्स विल बी द टारगेट। नाउ गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, क्योंकि गोल्ड पे मेरी नज़र कल से है। गोल्ड में जो है एक बाई ट्रेड है यहाँ पे, बट ओवरनाइट ट्रेड होगा, सो जो रिस्क ले सकते हैं उन्हीं के लिए ये ट्रेड है। ऐसी वी आर सिटिंग एट अ डबल बॉटम, वी आर सिटिंग एट अ डबल बॉटम ऑफ 50,500 लेवल ऑन द MCX। अगर मैं कॉमिक्स की बात करूं तो 1852 का जो लेवल है ये बहुत ही बेहतरीन लेवल है, $1850, fantastic level. Now why it's a fantastic level? Because it's a 200-day moving average, number one. Second, this was the a major resistance in the month of November. So we are basically at a resistance which broke, and we are retesting it for the first time, so it should act as a support. So the resistance has turned into a support, and this is confluencing with the 200-day moving average, and this is also a Fibonacci number. So all in all, this becomes a very great location to spot for a trade. तो यहाँ पे गोल्ड में अगर आप ओवरनाइट मिनी लॉट्स वगैरह में आप ले सकते हो, 50,500 50,700 यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे जो है कॉमिक्स का अगर मैं रेफरेंस दूं तो $1840 आप रेफरेंस ले सकते हो कॉमिक्स के तौर पे, ठीक है। सो 1840 शुड बी योर रेफरेंस लेवल ऑन द कॉमिक्स एज अ स्टॉप लॉस, एंड यू कैन लुक टू बाय 1852 1855, ओके। और टारगेट हम लेके चलेंगे, काफी बड़ा टारगेट है, टारगेट जो है $1920 तक का टारगेट है। और MCX के टर्म्स में इसको मैं ट्रांसलेट करूं तो आई थिंक द बाय लेवल कम्स टू अराउंड से 50,500 50,600, यहाँ पे जो है बाइंग जोन है। एंड स्टॉप लॉस के तौर पे आप 50 के नीचे रख सकते हो, लाइक 49,950, जस्ट अंडर 50,000 द साइकोलॉजिकल लेवल यू कैन कीप द स्टॉप लॉस। और टारगेट कम से कम जो है 1000-2000 पॉइंट का टारगेट होगा, टारगेट कैन बी very easily till 53,000. Now mind you that if you plan to take this trade right now, like before closing, कुछ मिनी लॉट्स में एक्यूमुलेट करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फेड की मेन जो पॉलिसी है वो कल रात को आएगी। सो टुमारो यू हैव लाइक 24 hours गोइंग इनटू द इवेंट, और इसमें जो है गोल्ड व्हाट इट कैन डू इज इट कैन रिमेन इन अ लिटिल रेंज, इन अ लिटिल रेंज, नॉट अ बिग रेंज, इन अ लिटिल रेंज। तो हो सकता है आपको जो है एक लॉन्ग वगैरह जो है आप इसमें जो है प्रॉफिट कर लो, एंड देन अगेन यू कैन बुक आउट, एंड अगेन जस्ट बिफोर द पॉलिसी इफ इट गिव्स अ डिप आप बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे ट्रेड को स्केड्यूल कर सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम टुमारो इज द पॉलिसी विल कम एट 11:30 एंड MCX क्लोजेस एट 11:30, लाइक यहाँ का मार्केट बंद होगा और उसके बाद जो है ना डिसीजन आएगा। सो दैट इज नाउ इट्स अ वेरी वेरी स्पेकुलेटिव कि हम लॉन्ग करके जाते हैं सपोर्ट पे, और अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर अगले दिन जो है बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नेवरदलेस कल पॉलिसी के पहले हम जो है थोड़ा इंट्राडे प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करेंगे, एंड विल ट्राई टू एनालाइज कि क्या ऑड्स हैं गैप अप या गैप डाउन होने के। तो उसके हिसाब से हम पोजीशन साइजिंग को हम रिड्यूस वगैरह करके भी जा सकते हैं। वी कैन टेक द ट्रेड विद लो पोजीशन साइजिंग, देयर बाय
at least keeping ourselves safe from any big gap down. Now सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 63,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, 62 पे एक अच्छा सपोर्ट है, बट आई डोंट लाइक सिल्वर एट ऑल, क्योंकि सिल्वर का जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, बेकार स्ट्रक्चर है. सो देयर कैन बी 2000 पॉइंट्स अप मूव टिल 65,000, बट आई थिंक सिल्वर में जो है अभी मुझे कोई खास इसमें मूव लग नहीं रहा है. व्हाट आई फील इज silver will do lot of rotations going into next few weeks, going into next few months, and probably it will do something like this, create a falling wedge pattern somewhere in the third quarter, and probably then a massive move will happen. So I think silver में हमें अगर रेंज बाउंड साइड में खेलना है तो बहुत बढ़िया है. यानी हम इसे बड़े लॉन्ग भी कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े शॉर्ट्स भी कर सकते हैं. सो दैट वे इट इज गुड. तो सिल्वर अगर आपको सपोज बाइंग साइड में अगर आपको करना है तो मैं समझता हूँ 62,000 पे जो है एक बाइंग आप कर सकते हैं. 62,000, 61,700 समवेयर हियर, दैट्स अ परफेक्ट लेवल फॉर बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, बट द प्रॉब्लम इज स्टॉप लॉस बड़ा है, तो स्टॉप लॉस जो है आपको 60,500 का स्टॉप लॉस रखना होगा. सो यू कैन लुक टू बाय 61.7 to 62,000. Stop loss you can keep say 60,500, and the targets will also be bigger. The targets will be 66,000. So you can see थोड़ा बड़ा stop loss but targets भी बड़े हैं. So that's the update on silver. मेटल्स में कोई अपडेट नहीं है, सो आई विल नॉट टेक कॉपर, निकल एक्सेट्रा. हम सीधे चलते हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम के ऊपर. नाउ द फाइनल द डी डे इज कमिंग फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि हमने जैसा पहले डिस्कस किया है कि फेड पॉलिसी के बाद जो है इनमें बहुत ही बड़ी मूव होगी. तो परसों के दिन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या हम देख रहे हैं, कैसे हम इसको बाय सेल करेंगे. सो आई विल नॉट रिपीट दैट थिंग. यू कैन रेफर दी डे बिफोर यस्टरडे वीडियो, उसमें काफ़ी डिटेल में इसे मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वेरी क्विकली. तो निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस बीच, एंड हमने इसमें काफ़ी सारे ट्रेड्स जो किए हैं, especially the big shorts and all those have worked brilliantly. So आपको याद होगा कि हमने जो है वीकेंड में भी शॉर्ट्स लेके हम गए थे, लाइक पुट्स लेके गए थे, एंड मंडे वाज अ वेरी ऑब्वियस डिक्लाइन, एंड यहाँ पे जो है बहुत ही शानदार इसमें प्रॉफिट हो गया. इसको कवर अप हमने कर लिया और क्लोजिंग के पहले वापस से हमने इसे जो है शॉर्ट कर दिया. सो दैट वाज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड. नाउ लेट मी जस्ट present my case about the Nifty. So right now what you can see is there are mixed signals. This is a very complicated box. If you want to see from a trend line break perspective, you would say that it's a breakout and it is retesting, so it's at a support. अगर आप इसे ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी एक सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है. अगर आप ऐसे देखोगे तो भी आपको ये एक सपोर्ट पे दिखाई देगा. So there are conflicting outcomes over here, but what is my outcome, like what I see, how I see? Let me tell you a very simple thing कि अगर आप पहले तो कॉमन सेंस के तरीके से आप सोचो, ठीक है, कि ग्लोबल इक्विटीज दे हैव बीन डाउन एंड निफ्टी इज सस्टेनिंग ऑन अ परसेंटेज ऑन अ रिटर्न बेसिस. ठीक है, सो क्या ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है या क्या ये लैग इफेक्ट है? ठीक है, तो क्या ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्या ये लैग है? लैग यानी जैसा पहले हुआ था वो वाली बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. ठीक है, सो दैट इज वन क्वेश्चन. सेकंड इज इफ इट इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ. नाउ लेट्स थिंक, लेट्स डाइसेक्ट. इफ इट्स अ केस ऑफ अ रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो हमारे यहाँ पे फिर स्टॉक्स की हालत क्यों खराब है? ठीक है, अगर हमारा मार्केट इज शोइंग अ रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो जो आपके जो टॉप के जो स्टॉक्स हैं उनके चार्ट्स काफी इंटरेस्टिंग होने चाहिए थे. उनके चार्ट्स ऐसे होने चाहिए थे कि दे कुड हैव लुक्ड लाइक एज अ सॉर्ट ऑफ अ लाइक कंसोलिडेशन. तो कुछ चार्ट्स हमें कप एंड हैंडल दिखते, कुछ चार्ट्स हमें फ्लैग में दिखते, ऐसे दिखते. ऑल द बुलिश स्ट्रक्चर्स दे आर नॉट एट ऑल विजिबल ऑन द चार्ट्स. ठीक है, रिलायंस एक था, रिलायंस ने अपना जो है एक अप मूव कंप्लीट कर लिया है. अडानी ने एक काफी हद तक जो है कंप्लीट कर लिया है. HDFC दोनों डाउन है. सो देयर इज नॉट दैट एविडेंस जो सजेस्ट करे कि हमारा मार्केट जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है. एटलीस्ट मुझे तो वो नहीं दिख रहा.
तो मुझे लगता है कि देयर इज अ लैग इफेक्ट, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ लैग इफेक्ट। लैग का मतलब ये है कि आवर मार्केट इज लैगिंग बाय S&P 500 बाय सर्टन वीक्स और बाय सर्टन डेज, ठीक है। नाउ ये कितना है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका कोई हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट आई डेफिनेटली बिलीव दैट देयर इज अ लैग इफेक्ट दैट इज गोइंग ऑन इन आवर मार्केट, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इवन वी start to collapse, and we also start to make either a double bottom or a new low, just like the US market has done. Okay, so I will opt for a lag effect. Now suppose अगर lag है तो ये मार्केट कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। सपोज ये लैग अगर है तो ये मार्केट कैसे बिहेव करेगा, ये मार्केट ठीक इसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे यहाँ पे था। सो इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, देयर वाज अ ट्रिपल बॉटम सपोर्ट, एवरी टाइम मार्केट यूज्ड टू गो अप, इट यूज्ड टू बी सोल्ड ऑफ। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एंड आई थिंक सूनर और लेटर दिस विल एंड इन दिस पर्टिकुलर फैशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना बहुत ही एक प्रिसाइज प्लानिंग के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, या ऐसा भी नहीं मन में लेके चलना है कि यार मार्केट तो अभी 1000 पॉइंट निफ्टी गिरने वाला है तो हम शॉर्ट ही खेलते रहें, ऐसा कुछ नहीं, कोई फिक्सेशन के साथ नहीं जाना है। वी विल कीप एट द बैक ऑफ आवर माइंड ओनली वन थिंग, और वो चीज़ मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ, और वो ये है कि डोंट बी अ स्टूपिड बुल, ठीक है, डोंट बी अ स्टूपिड बुल। स्टूपिड बुल का क्या मतलब है कि आपने 4 लोगों को देखा और आप जो है बुलिश हो गए, आप करेक्शन का नहीं वेट कर रहे हो, स्टॉक्स में आप ब्रेकआउट्स बाय कर रहे हो, ठीक है, यू आर बेसिकली लुकिंग टू बाय दीज सिली ब्रेकआउट्स व्हिच आर नथिंग बट अ ट्रैप। आप टाइटन देखो, कितने सारे स्टॉक्स मैंने आपको बताया थे कि जिसमें जो है आपको नहीं एंटर करना चाहिए था, पूरा आईटी सेक्टर जो है मैंने आपको वार्न किया था, एंड मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर दे आर ट्रैप्ड एट हायर लेवल्स, ठीक है। तो मार्केट, आप ऐसे सोचो कि मार्केट अगर जेन्यून, अगर अगर एक मार्केट को न्यू हाइज वगैरह जाना है जेन्यून तरीके से, तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा कि कंसेंसस जो बिल्ड है सिस्टम में उसको जो है ब्रेक करेगा, और कंसेंसस ये है कि LIC IPO आने वाला है तो मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट रिलेटिव स्ट्रेंथ ब्ला ब्ला ब्ला, सो ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी शैटर्ड फर्स्ट, ठीक है। तो इन सब बातों का थोड़ा सा बैकड्रॉप में हमें एक मन में लेके चलना चाहिए, वो लेके चलने से फायदा क्या होता है कि यू विल रिमेन अलर्ट, एंड यू विल नॉट टेक hasty decisions. ओके, नाउ सीधे अब लेवल की बात करते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है, क्या क्या लग रहा है मार्केट में। तो हम तो शॉर्ट साइड में हैं, ठीक है, एंड वी हैव गॉन शॉर्ट एंड विल सी टुमारो मॉर्निंग व्हाट हैपेंस। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट बिफोर क्रॉसिंग 17,400 निफ्टी विल टेस्ट 16,666, ये लेवल मैं पिछले 786 बार दे चुका हूँ, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट जो है कम से कम यहाँ पे आएगा, ओके, एंड दिस शुड कम बाय मोस्टली आई थिंक बाय नेक्स्ट 2 days, below 17,400 we should hit 16,600 level, and possibly that, or somewhere near that 16,550, somewhere here we can make a bottom. So दो बॉटम पोजीशन है, एक तो या तो यहाँ पे 16,550 से 16,600, यहाँ पे एक बॉटम बन सकता है कुछ इस तरीके से, एंड देन we rally into the month of early June towards 18,600 level, just around the previous high, ठीक है, and then अगेन फेल मिजरेबली। तो ये पार्ट हम छोड़ देते हैं, ठीक है, बस ऐसे देखते हैं। तो एक ये सिचुएशन है, ठीक है, कि 17,400 के नीचे 16,500, 16,600, और उसके बाद अगर यहाँ से बॉटम बनता है, रिवर्सल होता है, तो हम डेफिनेटली लॉन्ग करेंगे यहाँ से, एंड वी विल प्ले फॉर दिस लेग which is say 18,400 600 level, just under the previous highs by June first week, ठीक है। तो यानी 5-6 मई से बॉटम, और फिर 5-6 जून 5-10 जून तक एक और स्विंग हाई, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी सिचुएशन कि सपोज अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, सपोज वी डू नॉट होल्ड ऑन टू दिस लास्ट ईयर्स फर्स्ट बॉटम दैट वाज मेड, तो क्या होगा, तो आई थिंक इट विल फॉलो द यूएस पैटर्न, एंड आई थिंक देन वी आर गोइंग ऑल द वे टिल 15,400, जस्ट ब्रेकिंग this bottom, just breaking का मतलब है कि we will not sustain below this, just breaking this bottom,
एंड ये पूरा करेक्शन जो है ये फिर जून फर्स्ट वीक तक ये चलना चाहिए, पोस्ट विच वी विल डेफिनेटली start a very solid rally. So we would have come at a juncture like this to stage a very nice uh, rally. And if you see, all these are waves. और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2022 जो है दोस्तों, ये इट विल बी द ईयर ऑफ वेव्स. वेव्स का मतलब है कि मार्केट ओवरऑल कहीं नहीं जाएगा, but market during the year it will keep giving big swings. And if you can manage to play at the right time on the right side, then this is the year for traders. ठीक है. सो ये कुछ दो पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रख चुका हूं. 17,400 का रेफरेंस लेवल है, इसके नीचे 16,500 600 पहला हमारा जो है एक टारगेट है, एक लोकेशन है जहां से बॉटम आउट हो सकता है. मार्केट बॉटम आउट होगा तो ही फिर हम लॉन्ग करेंगे, नहीं तो हम शॉर्ट को कंटिन्यू करेंगे. इफ इट डजंट बॉटम हियर, देन द नेक्स्ट ऑब्वियस location for a potential bottom stands at 15,400 level, creating a just a flush of the previous lows, and then staging up or then starting a big rally towards the mid July sort of level. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दो alternatives हैं, and let us see which alternative happens. ओके, सो ये मेरा एक पोजिशनल अपडेट है निफ्टी पे. अब बात करते हैं, सीधे हम आते हैं कि कल के लेवल पे तो हम कैसे ट्रेड करेंगे. सी, इट्स वेरी सिंपल. कल का जो मॉब लेवल है, दैट इज नथिंग बट योर वीकली मॉब लेवल 17,150 हम राउंड फिगर जो है इसको ले सकते हैं. एंड 17,150 के नीचे इट इज 16,800 एज अ फर्स्ट टारगेट, 16,600 एज अ सेकंड टारगेट, और 17,150 के ऊपर जो है कोई भी शॉर्ट नहीं रखना है, बिकॉज दैट विल अगेन इनवाइट द बुल्स एंड दे मे अगेन गो फॉर checking out these unfilled gap areas of 17,400. ठीक है. अगर मैं इंट्राडे चार्ट ओपन करके दिखाऊं तो मैं एक बार आपको इसमें मेंशन भी कर देता हूं कि किस तरीके से कल के हम लेवल्स देख रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ निफ्टी. सो द मेक और ब्रेक लेवल शुड बी 17,130 हम लेके चलते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से. सो दिस इज द मेक और ब्रेक लेवल 17,130. बिलो दिस इट्स ऑल बेरिश. पहला टारगेट होगा इस बॉटम को टेस्ट करना, जो कि होगा 16,922. सेकेंड टारगेट होगा 16,820 एंड थर्ड टारगेट विल बी 16,666. Now for tomorrow session, I don't think market is going to go above 17,300 and below 16,800. I think it's going to remain in this 500 points maximum, because the actual move will happen day after tomorrow. ठीक है. मॉब लेवल के ऊपर डेफिनेटली कोई शॉर्ट नहीं रखना है, बिकॉज इफ यू सी दिस वाज अ सिंगल कैंडल टॉप क्रिएटिंग अ स्पेस. तो जिन्होंने भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड किया, आपको पता है कि पहला टारगेट हो जाएगा 17,300 का, एंड दैट्स इट. ठीक है. सो दैट्स द ऑब्जर्वेशन. दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी फॉर टुमारोज सेशन. लाइक का बटन दब नहीं रहा है, शेयर हो नहीं रहा है, और सब्सक्राइब आई डोंट नो कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई डोंट नो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग केस बन चुका है. कैसे इंटरेस्टिंग केस बन चुका है? इफ एनी ऑफ दी सीरियस स्टूडेंट जिन्होंने प्राइस एक्शन को अगर अच्छे से पढ़ा है, तो if I highlight, if you have attended this training thoroughly, you will know why I am saying that Bank Nifty is under trouble. ठीक है. तो मैं इसको रिवील नहीं करूंगा कि why I am saying so, but Bank Nifty is under trouble. अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियोस डेवलप हो रहे हैं. बहुत ही सिंपल सी बात है. 36,200 दैट इज द वीकली मॉब लेवल. ठीक है. तो 36,200 के ऊपर कोई भी शॉर्ट नहीं रखना है, बिकॉज उसके ऊपर बुलिश है मार्केट. एंड यू कैन वेरी इजली सी 36,700 लेवल, जहां से अगेन हम जो है एक थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है शॉर्ट ट्राई करेंगे फॉर द इवेंचुअल ब्रेकिंग ऑफ दिस कैंडल बॉटम एंड हिटिंग टुवर्ड्स 35,000 लेवल. तो ये कुछ इस तरीके से ये हो सकता है. ठीक है. ये कुछ इस तरीके से आउटप्ले हो सकता है. ए बी सी एंड देन अगेन डम्प्ड हियर टुवर्ड्स 35,200 34,800 लेवल. ठीक है. सो बहुत ही सिंपल है. 36,200 इस लेवल को वॉच करना. 36,200 इसके ऊपर बुलिश,
36,700 एंड इसके नीचे बेरिश है और पहला टारगेट होगा आपका 35,600 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 35,000 राउंड नंबर. ठीक है, दैट्स इट. इट्स वेरी 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 सिंपल, वेरी सिंपल फ्रॉम टुमारोज पर्सपेक्टिव. नाउ सपोज अगर कल ये हमें एक और वाइट कैंडल यहाँ मिलता है इस तरीके से, सपोज इफ वी गेट अ कैंडल हियर, ठीक है, तो हम क्या करके जाएंगे. सी वैसे भी कल के एंड ऑफ द डे डिपेंडिंग ऑन वेयर मार्केट क्लोजेस हम पोजीशन लेके जाएंगे. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ओवरनाइट फेड है, सो अगले दिन देयर विल बी मैसिव गैप अप एंड गैप डाउन. सो अवॉइड कैरिंग पोजीशन. आप जो है इसे कुछ ऑप्शंस के थ्रू आप कर सकते हो, हेज करके जाना वो ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक है, बट येस, टिल वी डू नॉट क्रॉस 36,700 कन्विंसिंगली, we are running a risk, and we can easily drop to all these levels. So that's all. I think I have explained Nifty and Bank Nifty in quite a detail, and let's take some stock queries, and then we will wind up the session. So we have utilized 35 minutes. Okay. uh, let me see. I will take only few quality queries. बहुत ज़्यादा आज query हम नहीं लेंगे. HDFC 1400 का कॉल होल्ड है, पुट कॉल पुट पे मैं नहीं पता था. HDFC में क्या बताया मैंने लास्ट टाइम, यू कैन बाय 1300, स्टॉप लॉस 1200 फॉर 1500, दैट्स इट. 200 सवा 200 पॉइंट के बीच में ही HDFC बैंक फिलहाल मुझे लग रहा है. कोई मोमेंटम बेस्ड मूव नहीं होगा, इट जस्ट गोइंग टू बी अ पकाऊ मूव. ठीक है. निफ्टी आईटी के बारे में व्यू दो, सब बेरिश है. ठीक है, अगर पुराना माल अटका है तो बाहर निकलिए. यूपीएल पे अगली क्वेरी है, यूपीएल लिमिटेड. ठीक है, सो यूपीएल में देखो, यूपीएल एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्टॉक में बॉस फ्यूचर में दम है. फ्यूचर मतलब फ्यूचर्स नहीं, फ्यूचर मतलब आने भविष्य, फ्यूचर. ठीक है, सो यहाँ पे इट्स ऑलरेडी एट अ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना 845 850. इवन इफ इट पॉप्स आउट, तो अब ये मत सोच लेना कि ब्रेकआउट हो चुका है, वो लॉलीपॉप मत खाना. ठीक है, यहाँ पे निकल जाना एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट करेक्शन. नाउ मैं आपको आज ही बता देता हूँ, अगला करेक्शन अगर ये स्टॉक मुझे मिला 735 750 के आसपास, यहाँ कहीं भी, और ये यहाँ से रिवर्स होना शुरू किया, that will be the best time to buy this stock with whatever bottom is made as a stop loss, and next time it will for sure give a big breakout. ठीक है, तो ये मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ. तो you can take a snapshot of this and keep it ready for future. So this is going to give a very big breakout in coming future, in near future. ठीक है, अब देखो फ्यूचर में अगर ब्रेकआउट देना है तो अभी इसे डैंगलिंग द कैरेट करना पड़ेगा, अभी इसे लॉलीपॉप मूव देना पड़ेगा, तो अभी मत लॉलीपॉप खा लेना. यूनाइटेड ब्रीवरीज, यूबीएल, दैट इज द नेक्स्ट क्वेरी. यूबीएल, सी यूबीएल अभी कुछ नहीं है, लाइक ठीक है, कोई अच्छी एंट्री भी नहीं है, एग्जिट भी नहीं है. एंड इफ यू हैव गॉन लॉन्ग, देन put stop loss 1485. there is a good chance that it might give a up move directly without going lower, but again it's again 50-50. Tata Steel, Tata Steel, okay, ओके. टाटा स्टील, सी टाटा स्टील जो है लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट देने से जो फेल कर दिया है, तो ठीक है, इट हैज कम डाउन. आई थिंक टाटा स्टील, सपोज दो सिचुएशन है, या तो अगर पहले के लॉन्ग्स हैं तो आई थिंक उसे रहने देना चाहिए. ठीक है, हम अगर वेट करेंगे न्यू हाइज का तो आ जाएगा. अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो मैं समझता हूँ कि 1172 1172, दैट इज योर लेवल. दैट इज वेयर इफ यू गेट इन पैनिक यू शुड बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ द प्रीवियस बॉटम, एंड नेक्स्ट राउंड में हम टारगेट जो है काफी ऊपर की उम्मीद करेंगे. ठीक है, most of the stocks, they are neither at a good support nor at a good breakout point. They are all hovering around almost at the center of the bigger range. That is a big problem.
There was a query. Okay. Shorted Wipro. Yeah, this was query. Shorted Wipro at 500. Shorted Wipro at 500. Okay. At 500. Very risky. Okay. So why I'm saying risky is because you're shorted at the breakdown of the support in a already, a stock, in a stock that is already down too much. Nevertheless, 495 hai. I would suggest you book out. If you get any gain, just book out, because this is not the best place to short, because these markets, they anytime they can swing back, right? So and already we are going to have a crossover of the death cross. ठीक है. So book out, even if it is at cost, just book out. This is not the place to short. Next query I have is United Spirits. यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवल यूनाइटेड स्पिरिट्स. ठीक है. सो मैकडॉवल यूनाइटेड स्पिरिट्स 811 के लेवल पे आने दो, तब हम वहाँ पे बाय का देखेंगे. ओके. सो आई थिंक ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था that I'm looking at the 200-day moving average as a place where I would like to take a long position. So 800 is the level to watch. Let it come over there. Once we see a reversal like this, हम definitely इसे buy करेंगे. And let me also tell you कि ये बढ़िया structure है, और ये स्टॉक जो है ना एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करेगा. एंड फ्रॉम हियर वी विल डेफिनेटली गेट अप मूव टिल 958 960 सॉर्ट ऑफ लेवल. ठीक है. तो एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, गुड क्वालिटी, एवरीथिंग इज नाइस. ठीक है. बट सही तरीके से प्ले करना होगा. चीजें तो सही हैं, बट सही तरीके से प्ले करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. बर्जर पेंट्स इज द नेक्स्ट क्वेरी. Berger Paint is the next query. Okay, so Berger Paint is already at a resistance. Sorry, Berger Paint was at a resistance at 736. It has come down. I think it is in a no man's land. So इस स्टॉक में मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैंने रिसेंटली बताया है कि आई वुड लाइक टू बाय दिस स्टॉक एट दिस लेवल विच इज 680. So if it comes at 680, it will interest me. Otherwise, I'm not interested in this stock. From a technical perspective, 736 is a major resistance. Watch out for that level. Okay. So yeah, that's it. कुछ खास नहीं है. I'll wait for a better time, a better structure, a better price to take a long or a short trade. Right now, 736 is a resistance. Bajaj Finance. बजाज फाइनेंस. ओके. सो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दोनों गिर चुके हैं इस वीक में. हमने इसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, दैट बजाज फाइनेंस शुड कम एट द 200-day मूविंग एवरेज. ये चीज आ चुकी है यहाँ पे. नाउ द पॉइंट इज, इस पे हम कल रिव्यू करेंगे. ठीक है. आज नहीं करेंगे, कल करेंगे. किटेक्स गारमेंट्स ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी. किटेक्स गारमेंट, बहुत दिनों बाद ये क्वेरी आई है. सो ब्रेकआउट के चक्कर में ना पड़े. एनी अप मूव दैट कम्स, यू शुड बुक आउट इन किटेक्स. ठीक है. आई एम सस्पेक्टिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन हियर, एंड आई थिंक यू शुड बुक आउट. कोई भी अप मूव आता है, इसे एग्जिट करें, और फिर आपको वापस से जो है ना ये स्टॉक अगर 200 के भाव पे मिलेगा फ्यूचर में, तो डेफिनेटली इसे जो है आप बाय कर सकते हो. ठीक है. एट 200. राइट नाउ आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस 320. Yeah, very very difficult to cross 320. डीएलएफ ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, गिर भी चुका है, फिर बड़ा भी. सो डीएलएफ में ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है. आई थिंक डीएलएफ जो है इट्स सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, एंड इट शुड फॉल फर्दर एटलीस्ट टिल 350 सॉर्ट ऑफ अ लेवल. ठीक है. डीएलएफ गिरने पे आए तो 350 340 तो बड़े आराम से कर सकता है. सो कीप एन आई. इसमें हमारा एक गेम ऑलरेडी हो चुका है 400 से 360 समथिंग. या दैट्स अ बिग गेन. गोकुल दास एक्सपोर्ट्स. गोकुल दास एक्सपोर्ट्स. सी गोकुल दास एक्सपोर्ट डबल ब्रेकआउट, बिग वॉल्यूम, प्रॉफिट बुक करें. डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें. जब भी ऐसे बड़े मूव्स होते हैं, बड़े वॉल्यूम होते हैं, तो सीधे प्रॉफिट बुकिंग.
10 में से 9 बार इट विल गिव अप ऑल द गेन्स। ये हो चुका है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। हाँ, एक्सिस बैंक देखो 730 आ चुका है। ठीक है, सो एक्सिस बैंक जो है 730 आ चुका है। एंड अब एक्सिस बैंक में कोई फ्रेश शॉर्ट वगैरह मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। ओके, इट इज एट सम सपोर्ट। लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है, बट शॉर्ट इज क्वाइट रिस्की। ठीक है, जो पहले जिन्होंने शॉर्ट किया है, आप डेफिनेटली आई थिंक 730 का एक लेवल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बुक करना मेरे ख्याल से सही होगा। गिरने को तो और भी नीचे गिर सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग 680, बट आई थिंक इट्स फेयर इनफ। 800 का शॉर्ट 730 पे बहुत है, इट्स इनफ। गो फॉर द इजी पोर्शन ऑफ द ट्रेड, नॉट द डिफिकल्ट वन। प्रिंस पाइप, प्रिंस पाइप्स इज द नेक्स्ट क्वेरी। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। आज मेरी सारे स्टूडेंट्स हैं क्वेरी में, सो दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि वैसे भी वेरी सून वी विल नॉट कंडक्ट एनी लाइव सेशन, इट विल बी ओनली फॉर द ग्रुप मेंबर्स। ओके, सो इट्स अ नाइस स्ट्रक्चर, आई लाइक दिस स्ट्रक्चर। और रिसेंटली मैंने ऐसे कुछ स्टॉक्स भी सजेस्ट किए हैं जिन्होंने बहुत बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। सो दिस इज योर वेरी नाइस स्ट्रक्चर 1 2 3। तो मैं समझता हूँ इसमें आप बने रहिए। अगर किसी को बाय करना है प्रिंस पाइप, तो कोई भी डिप आती है 650 तक आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 550 का होगा, 580 का स्टॉप लॉस है। कीप 10-20 पॉइंट्स बिलो दैट, एंड आई थिंक यू आर इन फॉर अ टेस्ट ऑफ 800 लेवल। सो मुझे लग रहा है कि ये जो है प्रिंस पाइप, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सॉलिड, एंड आई थिंक 820 तक तो ये आना चाहिए, वेरी वेरी हाई चांस। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसे 650 वगैरह मिला तो बहुत ही अच्छा बाय लेवल है। यू कैन कीप 100 पॉइंट स्टॉप लॉस एंड यू कैन टारगेट 825 वेरी इजली। हो सकता है उस समय शायद न्यू हाइज वगैरह भी बनाए, वो तब का तब हम देखेंगे। अगर न्यू हाइज बनाता है तो स्टॉक विल ऑलमोस्ट डबल, and the entire structure will look something like this. So keep an eye on this one. टाटा कॉफी, टाटा कॉफी तो मैंने कितने बार आपको पिलाई है और हर बार कहा है, टाटा कॉफी जब भी 200 पे आए 185 से 200 के बीच में बाय करके रख देना चाहिए। ठीक है, सो जो लोग पहले से भी फॉलो करते हैं सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर, सेम ट्रेड है टाटा कॉफी में। सी वी आर इन द मंथ ऑफ मे, एंड लास्ट ईयर it ended the May month at 185. Since then I'm giving that same level. एक बार यहाँ आया था and it went for a new high, then somewhere it came here, right, few months back, और एक और बार यहाँ पे आया था। So almost 1 2 3 तीन opportunities में आ चुके हैं। So very very nice। ठीक है, so अगर आप इसमें पहले से बायर हैं तो ठीक है, I think you should hold। ओके, आप होल्ड कर सकते हो, even if it comes down it's fine, but you should hold। इसमें मेरा 265 का टारगेट है। So at least at least aim for new swing high, if not the complete target, at least aim for like new swing high. By the way, that new swing high will automatically become 265. So ITC, ITC भैया कितने बार बताऊं कि मैं बुलिश हूँ। ITC वी आर बुलिश, और मैंने 210 से 280 का पहला एक ट्रेड दिया था जो कि हो चुका है, फिर करेक्शन हुआ, मैंने फिर बाय करवाया है। 320 300 का पहला टारगेट है। 300 हम देखेंगे, हमने 260 पे बाय किया तो 300 बहुत बड़ा, 40 रुपये बहुत बड़ा टारगेट है। सो प्रॉब्ली 300 वी विल एग्जिट फॉर द टाइमिंग। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स जो है द रिजल्ट्स एंड ऑल आर ऑलरेडी ओवर। सो आई थिंक टाटा मोटर्स में सेम पिछला व्यू जो है, आई थिंक टाटा मोटर्स तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो वी विल गो विद दैट सेम व्यू। पूरा गेम इस कैंडल का है, आप देख सकते हो इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं सस्टेन करता है, इस कैंडल के लो के नीचे नहीं सस्टेन करता है। सो टाटा मोटर्स इफ यू गेट नियर 405 410 48, 5 से 10 रुपए के बीच में यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे बाय करना चाहिए, कैश में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है इनिशियली, लाइक 370 काफी बड़ा स्टॉप लॉस है, काफी बड़ा स्टॉप लॉस है वैसे तो 400 रुपए के स्टॉक के हिसाब से, बट इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो आइदर वी डोंट ट्रेड और वी गो विद द वी गो विद द 370 एज अ स्टॉप लॉस, एंड देन लेटर ऑन वंस वी ब्रेक दिस 440 एरिया, तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर उसके बाद ना इसमें जितनी ताकत है, जितनी डिप है, सबको बाय, क्योंकि फिर ये 620 तक नहीं रुकने वाला है।
ठीक है, सो दैट इज द अपडेट दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दब नहीं रहा है। और CDSL जो है अगली क्वेरी है। सो CDSL जो है आपके 200 DMA पे आ चुका है। CDSL की कहानी खत्म हो चुकी है बॉस। CDSL से ना जल्द से जल्द निकल जाओ। लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी वेरी सैचुरेटेड स्टॉक, वेरी वेरी यू नो पुअर स्टोरी। सो आई थिंक इसमें से जो है अभी एक आखिरी सपोर्ट है, आखिरी चांस लेना चाहते हैं तो 1250 का स्टॉप लॉस रख दो, बट एनी अप मूव दैट कम्स आई थिंक इट इज अ एग्जिट, it is a definitely an exit. See, the main problem with CDSL is this. Look at the huge pump that happened last year. अब हुआ क्या कि ये चल गया यहाँ पे, और आप देखो तो इसके ऊपर ये कभी सस्टेन ही नहीं कर रहा है। करेक्ट। सो इफ दिस वाज अ बाइंग, ठीक है, then even if it was a buying, and roughly suppose they started buying near 1100 1200, ठीक है, probably they have exited here. And if this was not a buying, if the institutions or the operators were exiting, retails were buying, तो फिर ये तो पूरा प्रूफ हो गया ना कि लाइक इट्स एन एग्जिट। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसके एक 1250 के स्टॉप लॉस से टेक अ चांस, लाइक यू कैन कीप इट, एंड एनी बाउंस दैट कम, इट्स अ एग्जिट, इट्स अ क्लियर कट एग्जिट, इट्स अ क्लियर कट एग्जिट। ओके, SBIN, SBIN, ठीक है, SBIN जो है 480 का लेवल मैंने आपको दिया था, रुको वेट करो, आने दो। ठीक है, अभी देखो इसने बहुत अच्छा कैंडल बनाया है जो कि ऐसे लगेगा आपको स्ट्रांग है, बट ये इसको ब्रेक करेगा। सो लेट इट कम लेवल, ठीक है, अपना 465 480 यहाँ कहीं आएगा तो बाय करेंगे। सो मैनी स्टॉक्स दे आर ऑलमोस्ट ऑन द रडार, लेट्स सी, अगर अच्छे एंट्रीज मिल गए तो ठीक है। गुजरात गैस, गुजरात गैस, गुजरात गैस तो बुरी तरीके से पिटने वाला है। सी, गुजरात गैस गॉन केस स्टॉक है बॉस। सो any move that comes, just exit. Very very bearish counter, very bearish counter. Any up move that comes will not be greater than 550 or 580 rupees. I don't see the stock crossing 580 anytime soon. IGPL, ओके, ओके, ठीक है। सी, ये जो स्टॉक है, I like this stock, not now, but I like this stock from a near future perspective. Why I like this? Because I think in the next dip, I think it should dip till 640 sort of level, but I suspect it will witness a buying interest. So probably here I will be interested in this stock, and the conviction rate will also be high. And I can see there's a earning that is scheduled after 1 month. So probably that will be the time to have a look at this stock. Right now nothing, कुछ नहीं है stock में अभी तो। IEX, IEX, Indian Energy Exchange. So IEX will follow CDSL, ठीक है, तो देखो सेम कहानी रिपीट हो रही है। तो आप इसमें जो है, पहले मैंने सजेस्ट किया था कि अगर किसी को रखना है तो आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सो ठीक है, अभी 10-12 रुपए की बात है, आप 194 लगा के रखो, 190 लगा के रखो स्टॉप लॉस, लेट अस सी। मोस्टली आई थिंक it is coming at 190, but let's see, let's hope for the best, it might give you some up move। ठीक है, बट ये दोनों स्टॉक जो है ना, the CDSL and the IEX, because they were the favorite of retail, one will follow the other. So based on that basis I'm saying, तो किसी को अगर एग्जिट करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डोंट एवरेज, एटलीस्ट डोंट एवरेज, डोंट ऐड टू योर लूजिंग पोजीशन, ये सब गलतियां नहीं करना है। BHEL, BHEL, ठीक है, भारत, BHEL जो है ना, इसे मैं सजेस्ट करूंगा इसे रखने के लिए। Okay, let's keep it for some time, and especially only for those like who have bought at 50 rupees 52 rupees, okay, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। दीपक फर्टिलाइजर, दीपक fertilizers, we can take a couple of more queries and we'll have to wind up। दीपक फर्टिलाइजर ऑलरेडी बॉस हो चुका है यार। यहाँ पे देखो, दीपक फर्टिलाइजर मैंने दो चीज बताई थी, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे करो,
और अगर चांस लेना है तो चांस लो फिर 850 टारगेट का, ठीक है। सो डिसाइड करो, चांस लेना है तो होल्ड करो। अभी होल्ड करने के लिए स्टॉप लॉस काफी नीचे है, 520 का स्टॉप लॉस है। ट्रेलिंग ही आपको 520 करना पड़ेगा, जो डबल बॉटम था यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो प्रॉफिट बुक कर लो, और नीचे आएगा 580 के आसपास, 550 के आसपास, तो वापस से बाय बैक करेंगे। 850 का टारगेट अभी भी ओपन है। इट्स अ गुड काउंटर एंड गोइंग गुड, नाइस। करेक्ट करेक्ट, यस। मारुति सुजुकी, लार्सन एंड टूब्रो, ये दो काउंटर हम लेंगे। मारुति सुजुकी, ओके, सी मारुति सुजुकी में भी वही चीज हो रही है, ना तो 8400 आ रहा है, ना तो 7200 आ रहा है, जस्ट गोइंग नोवेयर। सो अभी इसमें कोई व्यू नहीं है मेरा, ठीक है। प्रॉब्ली इन सम डेज आई विल हैव सम व्यूज। इंडियन होटल्स, इंडियन होटल्स, देखो ये जितने होटल्स वाले थी मैं, इनको मेरे ख्याल से अब एंड कर देना चाहिए, ठीक है। सो इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, आई थिंक इट्स ऑल आउट। Dunseri Ventures is the next query. So again, this stock, see ये स्टॉक बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रहा है, बट इसमें मैं उतना बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। इसमें मैं कब बुलिश होऊंगा मैं आपको बताता हूँ। If this stock, breaks and probably then come higher, only in that case I'll be bullish, or else no. It's a clear cut bearish counter as of now. और अगर ये गलती से एक कैंडल में स्पाइक करता है तो डेफिनेटली निकल जाना, ठीक है। So that's the update. D-Link India Limited चेक करते हैं। सो डी लिंक पे 129 का स्टॉप लॉस बता चुका हूं मैं, कि आप अगर बाय करना है तो आप जो है 140 पे बाय कीजिए, 130 129 का स्टॉप लॉस रखिए, और फ्यूचर में जब ये थोड़ा 185 वगैरह जाए तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। लेवल ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। M&M, महिंद्रा, ठीक है दोस्तों, अभी वाइंड अप करेंगे। लेट अस वाइंड अप। महिंद्रा, सी राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट एट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आप कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग वाले जोन में प्रॉफिट बुकिंग। लार्सन एंड टूब्रो एक बार लेते हैं, काफी देर से ये क्वेरी है। लार्सन एंड टूब्रो, एल एन टी, ओके। सो एल एन टी, नाइस स्ट्रक्चर, सारी चीजें ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको इसमें वार्न किया था कि बाय मत करना, लेवल ठीक है पर वेट करो, और ये लेवल के ऊपर जाने दो, ये जो रेड लाइन है। सो स्टिल वेटिंग पीरियड चालू है इसमें। हेवल्स की बात करते हैं। हेवल्स, कैन वी एंटर एट 1200 लेवल? तो हेवल्स में नहीं नहीं नहीं, हाँ 1200 ठीक है, आने तो दो, पहले देखते हैं ना। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, वाई 1200, समझ गया मैं, ठीक है, नाइस, ठीक है। एनालिसिस जो है बराबर है। लेट्स वेट। कैम्स को कोई होल्ड कर रहा है सिंस आईपीओ। कैम्स भी देखो सीडीएसएल और उन्हीं की भाषा वाला काउंटर है, खत्म हो चुकी है बॉस, ये खत्म हो गया। ये अब कम से कम 5 जन्म तक ये लेवल नहीं आएगा 4000 वाला, ठीक है। सो दीज स्टॉक्स, ये सब पंप एंड डंप वाली कहानी होती है हर बुल मार्केट में। सो इनका गेम ओवर हो चुका है। डोंट एवरेज, डोंट एंटर, ओनली लुक फॉर एग्जिटिंग ऑन एनी राइज। आयन एक्सचेंज इज अनदर क्वेरी, आई एम ट्राइंग टू अकोमोडेट एज मच क्वेरी एज पॉसिबल। आयन एक्सचेंज देखो अभी जस्ट न्यूली लिस्टेड काउंटर है, ज्यादा डेटा नहीं है तो टेक्निकल्स हम इस पे नहीं कर पाएंगे। कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स और कोरोमंडल इंटरनेशनल, आई थिंक, yeah. So this stock, big candle, big breakout, profit booking, definitely profit booking. Voltas, okay, interesting. Voltas, so Voltas head and shoulder pattern है boss, ठीक है। Keep a stop loss of 1200, that's it. If you're long, keep a stop loss of 1200, that's it, ठीक है। ये स्टॉक अगर 1200 ब्रेक करता है तो कम से कम 1120 1130 तक आएगा, वहां पे इसे बाय हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, इट्स अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन, इट कैन एनी टाइम गिव अ ब्रेक डाउन। रेडिंगटन,
चलिए 2 मिनट और will be completing the 1 hour time. Reddington is coming back to this level. I think last time मैंने इसमें शायद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट किया होगा बिकॉज आई प्लेस्ड अ लाइन. So I think Reddington is coming at 140 rupees. Okay, and one thing you can do is just you can ask a follow-up query near 136 140. Most likely we can do a buy trade here. Most likely if things look good we will buy, keep a stop loss at 130, and again we will target this range. So I think Reddington is going to maintain this range for some time with a bullish perspective, or bullish bias. ठीक है. ONGC. ONGC. सी ONGC जो है ये अब जो है ना इसके चक्कर में ना पड़ना. ठीक है. सो अब ONGC में कोई भी बाइंग वाइंग जो है ना करें. आई थिंक इसका जो है गेम हो चुका है. विप्रो जो है बेरिश है, 500 के नीचे बेरिश है. 500 जैसी फ्लिप करता है कोई भी शॉट मत रखना बिकॉज सीधे वो 540 पे चल जाएगा. ठीक है. टाटा एलेक्साई, सारी क्वेरीज अगर आज लेंगे तो कल फिर मैं फेड के पहले लाइव नहीं आऊँगा. सो दिस विल बी लास्ट क्वेरी. टाटा एलेक्साई अभी नहीं. आई थिंक लास्ट रनअप वाज लाइक टू मच. और अगर हम बीच में यहाँ बाय करेंगे ना तो ये थोड़ा बाउंस देके फिर हमें फंसा देगा और ये नीचे गिरेगा. सो आई थिंक नो, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. टाटा एलेक्साई मैं यहाँ से वार्न कर रहा हूँ कि इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और पब्लिक बाय करते जा रही है. मत करो, आई एम टेलिंग यू. ठीक है. लैग इफेक्ट है इसमें. रिलायंस में सारे ट्रेड हो चुके हैं. रिलायंस में जो है 2840 मैंने आपको बुकिंग भी कह दिया था. 2840, दैट्स इट. सो रिलायंस में वी आर डन एंड डस्टेड. नाउ विल वेट फॉर गुड करेक्शंस एंड ऑल फॉर फ्यूचर ट्रेड्स. ठीक है. सो आई थिंक ये डन. ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइस. वाइंड अप करते हैं. 1 घंटे के ऊपर जो है टाइम लिमिट हो चुकी है. I have tried my best to take as many queries as possible. So wish you all the best for tomorrow's session and also day after tomorrow's session, very crucial. And lastly, किसी को अगर join करना है तुरंत तो आप तुरंत join कर सकते हो and you will be added in the student telegram group which might be beneficial for you. ठीक है. So good night, take care, wish you all the best. जय माता दी.